Sachit is the man on strike. Team Shantadurga Vatadev. And they're away with that wide delivery. Arush 11 Dhargal. Another team coming from extreme north. It's a wonderful delivery here from Akshay. He's got a wonderful run up. Right arm quick from Dhargal. Arush 11. They're playing up against Shantadurga Vatadev. Another very quick delivery, but it's a wide. It's been called as wide. Score moves on to 2 runs. 2 wides here from Akshay. Oh, this time he has connected that one all right. And that's gone for a massive 6. What a wonderful way to get off the mark here. Score moves on to 8 runs. 6 off the second ball. From Sachit to get off the mark. Yorker. A perfect Yorker this time from Akshay. Good comeback. Very good comeback. Well, that has to be the length. Here bowling in the power play over. Akshay Naik. Bowling for Arush 11 Dhargal. They've come a long way from Dhargal. Playing in this tournament. Shiva Chhatrapati Chashak. A big swing at a miss this time. He changed his length. Slightly back off the length this time. And a dot ball. What a shot. And just over the deep mid-wicket fielder. He had to cover a lot of distance and it's a massive 6. Second 6 of the over now. And this time the batsman is Paresh. He gets off the mark with that 6. What a beautiful way to get going. It's gone up, and oh, what a chance. It was a very difficult chance of catch. And a great effort, great effort from the fielder at mid-on. You've got to appreciate that effort from the fielder. He had to run a lot. And he almost made it. He almost reached there. But unfortunately, he couldn't hang on to it. So it will go down as a drop catch. But nonetheless, first over gone. 17 without loss. It's a wonderful start here for Shantadurga Vatadev. A local team coming from Karapur Tisk. Sakri.
And what a wonderful organization this has been from Shiv Maratha Sports and Cultural Club. Shiva Chhatrapati Chashak is the title. A total 40 teams fighting for a title. Excellent change of pace here from Shambhunath, the second bowler. Sachit deceived with a change of pace here. Shambhunath bowling the second over for Arush 11 Dhargal. That's big, but is it big enough? No, it's not. This time against the wind. The wind has changed its direction, as we can see. The flags waving in the opposite direction now. And that shot was played against the wind. And it's a wicket now. It's a wicket to the bowler. Shambhunath striking, and Sachit departs. Looked like a very good hit from him. Over pitch delivery. But unfortunately, the direction of the wind changing, as we can see the flags waving in the backward direction. And the ball did not go past the boundary. That has certainly been the beauty of this tournament. Last ball smash for a big six over the long on. And this delivery couldn't clear the fans, as we saw the direction of the wind slightly changing. Not slightly, in fact, it has changed by 180 degrees. And first wicket here for Shambhunath. Opportunity now for the bowling side, but that's up in the air, up in the air. And taken, another catch. What a comeback. What a comeback this is turning out to be. The wind completely favoring the bowlers now. The wind flowing in completely reverse direction, and the batsman trying to go against the wind and paying the price for it. Consecutive wickets now for Shambhunath, and this is what a comeback is all about. Wonderful comeback. After conceding 17 runs in the very first over of Akshay. Consecutive wickets now for Shambhunath. Siddesh will be on strike, and Kapil will join him at the non-striker's end. Good delivery. He was aiming for a yorker. Should just be a couple of runs though. He was aiming for a yorker. It was a good targeted yorker. The batsman making it a low full toss by playing it on the front foot. And a slight fumble in the field allowed them to take the second run as well. Siddesh will retain the strike as he got 2 runs off the last ball. The score moves on to 19 runs. Slower delivery this time. That's up in the air, and looks like he has cleared it. And once again, we can see the flag's direction, this time with the wind. Well, this has been the beauty of this tournament. Variant direction of the wind. Sometimes it works in favor of batsmen and sometimes in favor of bowlers. It's gone for a massive 6 over pitch delivery from the bowler. That's short and should be another wicket. Third wicket of the over. It was a short delivery
And batsman just trying to play it on the front foot and loses his wicket. Now that's played in the square region. Should be a couple of runs. A delightful looking square cut. In fact, he just pushed it through the point and gully region and gets aside a couple of runs. This is good smart cricket. That's connected all right. The ball is traveling along the carpet. Will it go all the way? Should get at least 3. And that is very good running between the wickets. They complete 3 runs. One can imagine how hard the conditions are. It's very hot out there at the middle. You've got to have a lot of energy and lot of stamina playing under such humid and hot conditions. It's the month of April. Now then, chance of a run out, a direct hit. And the question will be asked. Third umpire will be in play here. Third umpire will be in play. All facilities of two-sided cameras provided by tenniscricket.in. It's a direct hit. And he is a yard shot. He is a yard shot here. The batsman knew that straight away. He has to take a long walk back to the dugout of Shanta Durga Vattadev. He was looking good. He was looking dangerous. And it's a wonderful throw coming in. A direct hit. The next match will be played between
Smallem and Bodgeshwar Mapsa. Requesting the captains of both the sides to kindly come for a toss. Shaivi strikers Smallem and Shri Bodgeshwar Mapsa. There's a slight appeal. Not out, says the umpire. Is it? Or they are discussing? They're discussing. No, they aren't. End of the third over. And score moves on to 37 runs. Still, I must say, it's a very good start. 37 runs on the scoreboard. And over to Sachin Sawant for next 3 overs of the match. लेकिन इस बार अंबर जी की ओर से कोई फैसला नहीं, यानी कि डॉट गेंद नजर आती हुई, रन संख्या में कोई बदलाव नहीं, रन संख्या रुकी हुई केवल 37 रनों के ऊपर। स्ट्राइक एंड के ऊपर नए बल्लेबाज मौजूद है। बड़ा स्ट्रोक निकला उनके बल्ले से, खिलाड़ी गेंद के नीचे लगभग गेंद के तक पहुंचने का प्रयास करते हुए, लेकिन गेंद जो कि चली गई सीमा रेखा बाहर। 6 रनों के लिए 6 रनों के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई कुल मिलाकर पहुंचती हुई 43 रनों के ऊपर। 43 रन ऑन स्कोरबोर्ड। लगभग 4 विकेटें बिखरे हैं वहां पर बल्लेबाजी करने वाले टीम के, लेकिन एक छोर के ऊपर से बेहतरीन बल्लेबाजी का दायित्व नजर आता है। वह चौथा ओवर चलते हुए रन संख्या 43 रनों के ऊपर। गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर गेंदबाज जो कि शुभम नाम के, पहली गेंद डॉट, उसके बाद 6 रन निकले। इसके बाद फिर से एक बार हवाई फायर, नतीजा देखो, गेंद सीमा रेखा नजदीक, कॉट होने की संभावना, लेकिन छूटा कैच, छूटे हुए कैच की मोहर लगी जो कि 6 रनों के ऊपर। डीजे बल्लेबाज कपिल की ओर से लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के निकले। उसके बाद जो अतिरिक्त दबाव निकला, वो दबाव महसूस करते हुए गेंदबाज 1 रन निकला वहां पर वाइड के रूप में। 1 रन के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए कुल मिलाकर 50 रनों के ऊपर पहुंची, और कुल मिलाकर टीम की आधा टोटल जो कि नजर आता हुआ 50 रनों के ऊपर। इस बार फिर से एक बार दिशा से भटकते हुए गेंदबाज नजर आते हुए, लगातार दूसरी गेंद के ऊपर दूसरी गेंद वाइड वहां पर फेंकते हुए नजर आते हुए, यानी कि कुल मिलाकर मात्र दबाव महसूस करते हुए गेंदबाज अब मात्र वहां पर साइड बदलकर गेंदबाजी करने का फैसला जो कि गेंदबाज शुभम की ओर से। एक महंगा ओवर इस बार बेहतरीन ढंग के साथ फिर से एक बार खेला, खिलाड़ी गेंद के नीचे, कॉट होने की संभावना। 1 बाउंस, गेंद वहां पर चली गई सीमा रेखा बाहर। जिस गेंद के ऊपर गेंद को रोकने की आवश्यकता थी, उस गेंद के ऊपर निकले 4 रन, और 4 रनों की बदौलत रन संख्या कुल मिलाकर आगे बढ़ते हुए 55 रनों के ऊपर। डबल फिगर 55 रन स्कोरबोर्ड के खाते में वहां पर नजर आते हुए। खराब गेंदबाजी का दायित्व जो कि गेंदबाज शुभम की ओर से, पूरी तरह से बल्लेबाज हावी रहते हुए गेंदबाज के ऊपर लगातार 2 छक्के लगाए, उसके बाद एक चौका मुकम्मल करते हुए नजर आते हुए, और इस चौके के बदौलत रन संख्या 55 रनों के ऊपर। अभी भी इस ओवर की कुछ गेंदों का खेल बाकी, और उसके बाद 1 ओवर का खेल आना बाकी। इस बार बेहतरीन गेंद सटे टप्पे के साथ सूझबूझ भरे गेंदबाजी वहां पर नजर आती हुई। इस बार जो कि गेंद वहां पर परिवर्तन के तौर के ऊपर डाले, कुछ हद तक आगे डाली गेंद वहां पर, बल्लेबाज को चकमा वहां पर जरूर दिया, बल्लेबाज बीट हुए और रन संख्या रुकी केवल 55 रनों के ऊपर। अगली गेंद लेकर फिर से एक बार शुभम। इस बार खराब गेंद दिशा से भटके, फिर से एक बार लगता है जिस ओवर के लगभग 4 गेंदे अब तक वाइड फेंक चुके हैं। लगातार 2 गेंदे इसके पहले वाइड फेंकी थी, उसके बाद फिर से एक बार 1 गेंद अतिरिक्त के तहत रन देते हुए नजर आती हुई, और 1 रन के साथ 56 रनों के ऊपर।
इस बार लेग स्टिक के ऊपर गेंद थी, घूमकर खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, गेंद और बल्ले का संपर्क शायद सही तरह से हुआ नहीं था। आखिरकार आखिर की गेंद जो कि डॉट रही पांच चौथी ओवर की, और यहीं पे 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, और 4 ओवर यानी कि 24 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद रण संख्या पहुंची कुल मिलाकर 56 रनों के ऊपर। अभी भी 1 ओवर का खेल आधा बाकी, 6 गेंदों का खेल बाकी, और इन 6 गेंदों के ऊपर कितने रन जुटा पाते हैं बल्लेबाज, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। हेलो। आखिरी ओवर जो कि इस इनिंग का नजर आता हुआ 5वें ओवर की शुरुआत में गेंदबाज के बोर्ड के ऊपर रजत नाम के गेंदबाज, प्रजोत नाम के गेंदबाज नजर आते हुए। प्रजोत जो कि अगली गेंद लेकर इस बार मिस टाइम कर बैठे, खेलना चाहते थे मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। गेंद जो कि लो फुल टॉस थी, डीप कर रही थी गेंद, वहां पर ठीक तरह से हुआ नहीं। केवल 1 रन मिलता हुआ, 1 रन के साथ रण संख्या आगे बढ़ते हुए, रण संख्या कुल मिलाकर पहुंचते हुए 70 ने तब तक भागकर वहां पर 2 रन पूरे किए। हालांकि खतरा जरूर बना था, अगर डायरेक्ट हिट हो पाती तो निश्चित रूप से बल्लेबाज को लौटना पड़ सकता था, लेकिन बल्लेबाज की सुरक्षित अपने क्रीज में पहुंचे, रण संख्या 2 रनों के साथ आगे बढ़े। कुल मिलाकर रण संख्या 63 यानी कि 63 रनों के ऊपर रण संख्या नजर आते हुए, कुछ गेंदों का खेल बाकी आखिरी ओवर के। इस बार बड़ा स्ट्रोक, हवा में गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे, कॉट होने की संभावना, कॉट छूटा, छूटे हुए कॉट की मोहर लगी 2 रनों के ऊपर, और इन 2 रनों के साथ साथ रण संख्या आगे बढ़ते हुए नजर आती हुई। 2 रन और इन 2 रनों के साथ 65 रन कुल मिलाकर स्कोरबोर्ड के खाते में। 65 रन ऑन स्कोरबोर्ड यानी कि 65 रन। अभी भी कुछ गेंदों का खेल बाकी, एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर नजर आती हुई जो कि बल्लेबाजी करने वाली टीम। इस बार फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक, हवा में गेंद थी, काफी देर तक हवा में रही, मिड विकेट क्षेत्र में खिलाड़ी गेंद के ऊपर आए, गेंद को उठाया, फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक निकला केवल 1 रन। 1 रन के साथ साथ रण संख्या आगे बढ़ते हुए। अरे गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक लगाने की चाह रख रहे बल्लेबाज, अरे गेंद के ऊपर जोर के साथ बल्ला घुमा रहे हैं। शायद इस ओवर के आखिरी गेंद का खेल बाकी। स्ट्राइक गेंद के ऊपर बल्लेबाज जो कि सुशांत नाम के बल्लेबाज सामना करेंगे प्रज्योत का। शॉर्ट गेंद पुल लगाने का प्रयास जरूर हुआ था, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, गेंद चली गई विकेटकीपर के दस्तानों में। वहां पर 1 रन मिला अतिरिक्त के तहत। 1 रन के साथ साथ रण संख्या आगे बढ़ते हुए कुल मिलाकर पहुंचती हुई 67 रनों के ऊपर। गेंदबाज फिर से एक बार, इस बार फिर से एक बार बड़ा स्कोर लगाने का प्रयास, रनआउट के रूप में वहां पर बल्लेबाज हुए आउट। एक सफलता प्राप्त हुए आखिरी गेंद के ऊपर, लेकिन रण संख्या जो कि 67 रनों के ऊपर पहुंची, यानी कि 68 रनों का लक्ष्य जो कि मिलता हुआ नजर आता हुआ जीतने के लिए। क्या होगा, किस तरह से 68 रन बनाएंगे बल्लेबाजी करने वाली टीम जो कि
बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर नजर आया, बेहतरीन फील्डिंग का नमूना वहां पर देखने को मिलता हुआ। एक बेहतरीन स्ट्रोक था लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई। छलांग लगाई वहां पर, गेंद को रोका बाउंड्री लाइन के बाहर जाने से और गेंद को अंदर भेजा और इस गेंद के ऊपर निकले केवल 2 रन। स्ट्राइक एंड के ऊपर सुनील और उनके साथ बंटी ये जोड़ी मैदान के भीतर नजर आते हुए। अगली गेंद गेंदबाज की, इस बार बेहतरीन गेंद जड़ में डाले हुए, खोद कर निकालने का प्रयास जरूर हुआ था, गेंद और बल्ले का सही संपर्क हुआ नहीं। मिड ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी जहां पर मौजूद थे उनके हाथों में गेंद चली गई थी। 1 रन वहां पर भागकर पूरा करने का अवसर प्राप्त होता हुआ 1 रन के साथ 7 रन संख्या आगे बढ़ते हुए 3 रनों के ऊपर 68 रनों का पीछा करते हुए। गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर रुद्रेश जो कि गेंदबाज नजर आते हुए, बेहतरीन गेंदबाजी अब तक। इस बार बेहतरीन गेंद जड़ में डाले, खोद कर निकालने का प्रयास वहां पर हुआ। 1 रन के लिए वहां पर गेंद को खेला, हल्के हाथों से गेंद को खेला, 1 रन वहां पर भागकर पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने और 1 रन के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए कुल मिलाकर पहुंचते हुए रन संख्या जो कि 4 रनों के ऊपर। 3 गेंदों का खेल समाप्त, 1 गेंद के ऊपर 2 रन निकले, बाकी की 2 गेंदों के ऊपर सिंगल निकला, यानी कि 4 रन 3 गेंदों के ऊपर। अगली गेंद, इस बार बेहतरीन गेंद वहां पर ललचाया था बल्लेबाज को, लो फुल टॉस गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक लगना चाहिए था, गेंद और बल्ले का संपर्क वहां पर हुआ नहीं। 1 रन फिर भी भागकर शायद बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। 1 रन के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 5 रनों के ऊपर। हर एक गेंद के ऊपर बड़े स्ट्रोक लगाए जाए, रन संख्या को बड़े रनों के ऊपर तब्दील कर लिया, ये सोच वहां पर बल्लेबाजों की नजर आती हुई, लेकिन हर एक गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक उनके ऊपर लग नहीं रहा है। हर एक गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हल्के हाथों से गेंद को खेलना चाहिए, उसके बाद बड़े स्ट्रोक लगाने का प्रयास अगर बल्लेबाजों से होता है तो लक्ष्य का पीछा करना आसान रहेगा। बड़ा स्ट्रोक इस बार निकला, पॉइंट्स के क्षेत्र के ऊपर से गेंद को खेला, वहां पर खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए 2 रन वहां पर भाग लिए बल्लेबाजों ने। तीसरे रन का प्रयास कर रहे, तीसरे रन का प्रयास हो रहा था लेकिन 2 ही रनों के ऊपर संतुष्ट रहते हुए दोनों ही बल्लेबाज और इन 2 रनों के साथ साथ रन संख्या कुल मिलाकर आगे बढ़ते हुए निकलती हुई रन संख्या 7 रनों के ऊपर 68 रनों का पीछा करते हुए। गेंदबाज फिर से एक बार निकले रुद्रेश, इस बार बेहतरीन गेंद जड़ में डाले, खोद कर निकालने का प्रयास, खिलाड़ी वहां पर जरूर मौजूद है स्क्वायर लेग क्षेत्र में, उनके ऊपर से चूक होती वहां पर, जिस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं था उस गेंद के ऊपर मिस फील्डिंग की वजह से 1 रन मिलता हुआ 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई कुल मिलाकर 8 रनों के ऊपर। पहले ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी जीतने के लिए लगभग 24 गेंदों के ऊपर 60 रनों की आवश्यकता। डीजे दूसरे ओवर की शुरुआत, पहले ही गेंद वहां पर बड़ा स्ट्रोक निकला, पहले ही गेंद के ऊपर बेहतरीन वहां पर स्ट्रोक निकलता हुआ, स्वागत करते हुए वहां पर गेंद के साथ स्वैग से करेंगे स्वागत वहां पर नजर आता हुआ छक्के के साथ साथ, और इस छक्के के बदौलत रन संख्या निकलते हुए कुल मिलाकर आगे बढ़ते हुए 14 रनों के ऊपर। पहले गेंद के ऊपर लो फुल टॉस गेंद, एक न्योता दिया वहां पर गेंदबाज ने बल्लेबाज को और उसको पूरी तरह से भुनाते हुए 6 रन के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई कुल मिलाकर रन संख्या पहुंची 14 रनों के ऊपर। इस बार बेहतरीन गेंद, फिर से एक बार बेहतरीन गेंद, 1 रन वहां पर मिलता हुआ 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई रन संख्या कुल मिलाकर पहुंचती हुई अब मात्र 15 रनों के ऊपर। वक्ता जे स्पेक्टेटर्स आसात गेम पळोवपाक आयिल्ले आसा तांच्यांनी डग आउट्स मातशे क्लियर करचे, स्टेजी सायडीक जे डग आउट्स आसा
ते फक्त प्लेयरांक खातीर दवरलेले आसात. हांव मागता स्पेक्टेटरां कडेन की तांच्यांनी डग आउट्स जे आसा ते मातशे खाली करचे आनी मागता टिमीं कडेन की तांच्यांनी डग आउट्स ऑक्युपाय करचे. स्टेजी सायडीक जे डग आउट्स आसा ते ऑक्युपाय करचे दोनूय टिमींनी. बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन नजर आता हुआ. एक छक्का लगा, उसके बाद एक रन निकला, लेकिन उसके बाद बल्लेबाज को आउट करने में सफल रहे. वहां पर गेंदबाज बेहतरीन फील्डिंग का दायित्व वहां पर नजर आता हुआ. एक रन जो कि पहले गेंद के ऊपर मिला था, उसके बाद विकेट गिरा, यानी कि रन संख्या जैसी की तैसी वहां पर रुकी हुई. केवल 16 रनों के ऊपर 16 रनों के ऊपर रन संख्या 68 रनों का पीछा करना है. निश्चित रूप से इस मुकाबले के दरमियान क्या होगा, किस तरह से मुकाबला घटेगा, कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी, गेंदबाज हावी रहेंगे या फिर बल्लेबाज मुकाबले के ऊपर हाथ आजमाएंगे, तो आने वाला समय तय करेगा. प्रतीक. So that's the news from the center. The next match that will be played between Shivai Strikers and Shri Bodgeshwar Bapsa. Shri Bodgeshwar Bapsa won a toss and they've elected to field first. इस बार बेहतरीन गेंद, बल्लेबाज को चकमा दिया गेंद ने वहां पर. गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं. लेग बाइज के रूप में एक रन निकला. एक रन के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए कुल मिलाकर पहुंचते हुए 17 रनों के ऊपर. बेहतरीन पारी खेलनी होगी बल्लेबाजों को. 68 रन एक बड़ा टारगेट, उस टारगेट का पीछा करना है. अगर 5 ओवर के मुकाबले में तो हर एक ओवर में 1-2 छक्के लगाना अति आवश्यक. इस बार बेहतरीन गेंद, बल्लेबाज को चकमा देकर गेंद चली गई विकेट कीपर के दास्तानों में. अंपायर जी की ओर से कोई इशारा नहीं, यानी कि गेंद जो कि डॉट नजर आते हुए. रन संख्या रुकी हुई 17 रनों के ऊपर. 68 रनों का पीछा करते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम नजर आती हुई. गेंदबाज फिर से एक बार निकल पड़े. एक तेज रफ्तार भरी गेंद, इस बार स्लोवर वन नजर आती हुई. चेंज ऑफ द पेस जिसे कहा जाता है. टिप्पा गिरने के बाद गेंद स्लो निकले और बल्लेबाज को चकमा देकर विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान के साथ गेंद चली गई. रन संख्या रुकी केवल 17 रनों के ऊपर. 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद पहला ओवर वहां पर डाला था गेंदबाज रुद्रेश ने, उसके बाद सिद्धेश ने दूसरा ओवर डाला. दोनों ही गेंदबाजों ने कसावट भरी गेंद की. बेहतरीन पारी को अंजाम देने की कोशिश वहां पर हो रही है बल्लेबाजों की ओर से, लेकिन कसावट भरी गेंदबाजी जो कि बल्लेबाजों को चुनौती देती हुई नजर आती हुई. हर एक गेंद के ऊपर सवाल पूछती हुई गेंदें वहां पर गेंदबाजों की ओर से नजर आते हुए. अब मात्रा गेंदबाज के मूर्ति के ऊपर बदलाव नजर आता हुआ. 5 ओवर के मुकाबले में तीसरी ओवर वहां पर सौंपी है कप्तान ने अपने अनुभवी गेंदबाज हर्षद के हाथों में. हर्षद किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, इस गेंदबाजी के ऊपर काफी तरह से दारोमदार रहेगा. पूरी तरह से निर्भर रहेंगे दोनों ही टीमें. अगर ये ओवर बड़ा ओवर निकलता है बल्लेबाजों की हैसियत से, तो निश्चित रूप से बल्लेबाजी करने वाले टीम को मुकाबला आसान रहेगा. या फिर अगर इस ओवर में कम रन बनते हैं तो निश्चित रूप से गेंदबाजी करने वाली टीम इस पूरी तरह से मुकाबले के ऊपर हावी नजर आएंगे. गेंदबाज और बल्लेबाजों के बीच में एक बड़ा युद्ध इस मैदान के ऊपर नजर आता हुआ. फील्डिंग के क्षेत्र में तो लगातार बार बार वहां पर बदलाव नजर आते हुए. इस बार स्ट्राइक के ऊपर नए बल्लेबाज जो कि बल्लेबाजों के मोर्चे के ऊपर नजर आते हुए. स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज सुनील. धीमी रफ्तार के साथ डाले हुए गेंद और बल्ले का सही संपर्क. खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, लेकिन एक दर्शक की भूमिका में मात्र रहेंगे. गेंद उनके सिर के ऊपर से स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर गेंद चली गई. गोली की रफ्तार के साथ सीमा रेखा बाहर 6 रनों के लिए. और इन 6 रनों के साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए कुल मिलाकर पहुंचती हुई 23 रनों के ऊपर. डीजे इस बार फिर से एक बार गेंद को उड़ाया. गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, लेकिन लगातार दूसरी गेंद के ऊपर दूसरा बड़ा छक्का.
अब मात्र 17 रन थे। उसके बाद 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े छक्के निकले और गेंदबाज फिर से एक बार, इस बार लगातार तीसरी गेंद के ऊपर बड़ा स्लो लगाने का प्रयास। 3 खिलाड़ी गेंद के नीचे, कॉट होने की संभावना, विकेट कीपर गेंद तक पहुंचे, सेफ एंड वहां पर चले गए और कॉट। थैंक यू डीजे। 2 छक्के निकले, उसके बाद बल्लेबाज सुनील की पारी समाप्त, कॉट के रूप में वहां पर आउट है और उसके बाद अब मात्र नए बल्लेबाज मैदान के भीतर नजर आते हैं विशाल आराम के। इस बार बेहतरीन गेंद, चकमा दिया वहां पर बल्लेबाज को, गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान के साथ। अब मात्र गेंदबाजों का फिर से एक बार बोलबाला नजर आता हुआ। लगातार 2 छक्के जरूर निकले, लेकिन उसके बाद 2 गेंदें जो कि बेहतरीन ढंग के साथ डाली और फिर से एक बार अगली गेंद लेकर, इस बार फिर से एक बार चेंज ऑफ द पेस गेंद नजर आती हुई, बल्लेबाज को चकमा देकर गेंद बल्लेबाज के पीछे चली गई, विकेट कीपर के दस्तानों में, वहां पर 1 रन के ऊपर कोई गुंजाइश नहीं, यानी कि डॉट गेंद का खेल नजर आता हुआ। रन संख्या रुकती हुई केवल कितनी रहे, 29 रनों के ऊपर। इस बार लो फुल टॉस गेंद, बड़ा प्रहार, गेंद हवा में, हवा से बाहर, गेंद लाइन के बाहर चली गई, सीमा रेखा बाहर 6 रनों के लिए। और इन 6 रनों की बदौलत रन संख्या कुल मिलाकर 35 रनों के ऊपर। जीतने के लिए अभी भी लगभग 33 रनों की आवश्यकता बची हुई 12 गेंदों के ऊपर। 5 ओवर का मुकाबला, 5 ओवर के मुकाबले की 3 ओवर का हुआ खेल समाप्त। आने वाले 2 ओवर में किस तरह से बल्लेबाज बल्लेबाजी करेंगे, 33 रनों का लक्ष्य का पीछा आसानी के साथ करेंगे, ये बताने के लिए मैं माइक्रोफोन के ऊपर आमंत्रित करता हूं प्रतीक अमनकर को, और मैं सचिन सावंत कुछ देर के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। Paresh will be bowling a very crucial over here of the match. This match still equally posed for both the sides. It's been a very good comeback in the last over. We saw 3 massive sixes from the batting side. It's a dot ball. Paresh starts off with a dot delivery. 11 balls, 33 to get now for Arush 11 Dargal. Nishad is the man on strike. And that's been signaled as wide by the umpire. .32 to get now from 11 deliveries. Change in the field now. The wide, longer fielder comes in. That's straight up in the air and should be a straightforward catch to the wicketkeeper. Another wicket going down here as Nishad departs.
Sushant is the new man. Paresh. And let's go on the distance. This is good striking. Very good striking here from Akshay. Second six for him now. Now that looks like a dot. It's a single run taken. In fact, it's a leg by. And score moves on to 43 runs. Short ball and has pulled it. He has struck it powerfully out of the park. What a shot that is. Not over yet. They found 2 sixes in this over. Oh, a miss from the wicketkeeper, and that will allow them to take another single. 50 up for the side of Aarush 11 Thargal, and they would certainly want to believe that they still have a game on here. 18 more required now of just 6 deliveries. Game on. 2 big shots. They need 2 big shots. And both these batsmen very much capable of striking big, as we have seen in the last over. And Viraj has been handed over a huge responsibility. A big task ahead of bowling the final over. He's got 6 balls to be bowled and 18 runs to defend. Sushant the man on strike. Sushant and Akshay, 2 big strikers of the cricket ball. They can clear the fans. We've seen a huge 6 coming out of Sushant's bat. Can he do it now? I guess he has started off with a wide delivery. 17 now needed of 6. The thinking was right from Viraj to keep it on the good length outside the off stump, but he went too wide. Wide to start with. 17 from 6 now. Sushant. Oh, that's another wide. Now 2 sixes and a boundary will do now. The batting side, Aarush 11 Thargal. They need a big strike in the first 2 deliveries. It's another wide. Well, the bowler seems to be under pressure here. He has reduced down the score to just 15 now. He has given away 3 runs without a single ball being bowled. Good thinking, very good thinking. Slow delivery this time. And Akshay will keep the strike to face the next delivery. This time a slow delivery. Very fuller in length.
giving absolutely no chance to the batsman to free his arms. Wonderful delivery. Full toss, and he has put that one away with a massive power. This is good striking. Excellent shot that from Akshay to get going his side. So just 8 needed now of 4 deliveries. They needed 18 of the 6 and now just 8. They've got 10 runs off the first 2 balls. 3 wides, a single and a full toss. Big full toss for a 6. Oh, has he put it away? No, he hasn't. Looks like they should just get 2 runs. Yes. Just a couple there. So 3 balls remaining. And Aarush 11 Dargal just 1 strike away from claiming a spot in the pre-quarter match. Akshay is very much capable of clearing the fans. He's already smashed 3 massive 6s. And Viraj, on the other hand, who will it be? Will it be Akshay for Dargal? Or will it be Viraj? He has produced a perfect Yorker out of nowhere. So 6 needed of the last 2 deliveries. Aarush 11, 1 hit away. Looks like a wide ball. It's a swing and a miss here from Akshay. He had an opportunity. It was a big full toss. Big full toss from Viraj. And Akshay has missed it big time. Last ball. Will it be Akshay or will it be Viraj for Shantadurga Vatadev? Here we go. Oh, he hasn't. Akshay cannot clear. It's just a single. And that's it. Well played. Well played both the sides. The game went till the last ball of the game. And in the end, it's the side of Shantadurga Vatadev who are through to the next round. And a big appreciation and thank you for the participation in this tournament to Aarush 11 Dargal.